आज मैं ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसको सीखने में मुझे बहुत समय लग गया। पर जब मैंने उस चीज़ की गांठ बांध ली और मुझे समझ आ गया कि वो इम्पोर्टेंट है, मेरी ज़िंदगी के रास्ते खुले और मैं उन बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर पाई जो मुझे बहुत बॉदर करती थी काफ़ी सालों तक। और जब मैंने ये आर्ट सीखनी स्टार्ट की, स्किल होन करना स्टार्ट किया, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, इवेंचुअली आई केम टू अ पॉइंट where nothing could deter me, having seen so much stuff in the lifetime that I am, and I'm still very afraid of my life turning the other way. कौन नहीं होता, किसको एंजाइटी नहीं होती कि हमारे लाइफ में कुछ गंदा हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। सब लोग हम नॉर्मल ही जीना चाहते हैं। पर जब मैंने ये छोटा सा लेसन अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट करा और उससे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ानी स्टार्ट करी, तो मुझे कम एंजाइटी होने लगी। इवेंचुअली एंजाइटी इज समथिंग दैट आई हैड ever since I was a little girl, and in the last 5 years or so I have worked really hard on my mental health. If you don't know me, I'm Pooja. I am a 30-year-old software engineer. I'm also someone who has had a really tumultuous past, really struggling with my mental health for the last 10 years or so. And it's only in the last couple of years that I have been able to find my standing, and I really worked hard on my mental health and the growth aspect of my life in the last few years, especially after I lost my dad to COVID in 2022. And when that happened, it shook something in me. Of course it did. I still am living the the trauma of it after all these years, because it never goes away. But there are some things that I have learned in the process, and that is my goal with making these videos, to let the other person know that it's okay. It is a part of your life, whatever happens to you, and the things that should have been yours might not always be yours, and that is also okay. So as a continuum to all these lessons that I'm imparting here, in a way, this is lesson number 23 in 30 lessons for 30-year-old me. Accept some things for what they are. I'm gonna talk about some heavy stuff, but in a light-hearted manner. That doesn't mean कि अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, and it also doesn't mean कि मेरी लाइफ सिर्फ उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से उस समय पे चल रही थी जब मैं उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही थी। तो आपको मेरी कहानी पता ही होगी, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में उसको बोलना चाहूँगी जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं बहुत सालों से, जब मैंने अपना फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया था, एक्चुअली इट वाज लाइक 10 ईयर्स अगो, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स अगो, तब से ही मेरे को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने स्टार्ट हो गए थे राइट आउट ऑफ कॉलेज। एंड देन उस समय मेरे को समझ नहीं आया, देन आई क्विट माई जॉब फॉर अ लिटिल बिट टू टेक केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ, एंड आई डिड नॉट टेक केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ अराउंड दैट टाइम. फिर इवेंचुअली आई वेंट ऑन टू थेरेपी. आई वॉज ट्राइंग टू गेट बेटर, एंड दिस इज ऑल्सो द टाइम when I moved to London for a new job. And just in the first 5-6 months of me moving outside India, I lost a family member. I lost my dad to COVID, and when that happened, I was a mess. My mental health journey, just to say the least, of the repercussion of something like this, something big like this happening to you, is that you're already bad. Mental health gets worse, and it did happen for a lot of time. But I don't know, just by sheer miracle of all the things, I always believe that my dad is looking over me all these years ago, and this is just because of his blessing that I am sitting here, and I'm being so grateful for the life that I have, even when a lot of things happen to me. तो उस चीज़ में इतना सब कुछ हो रहा है, तो फिर मेरे को तो बुरा लगना चाहिए ना, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। हाँ, मुझे बहुत टाइम तक बुरा लगा। मुझे हमेशा, जब मैंने अभी रेट्रोस्पेक्ट किया कि शुरू में जब मेरे को जॉब भी मेरी ठीक चल रही है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा था। फिर उसके बाद में भी मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, मैं I really wanted to move to London. I worked really hard for it, and when I did move eventually, I was not very happy initially. ये तो मेरा ड्रीम था, मेरे को तो एकदम एस्थेटिक होना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरा एक्सपेक्टेशन लाइफ से इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई एम लिविंग, एंड व्हेन दैट गैप वॉज देयर, मेरे को वो एक्सेप्टेंस करना नहीं आता था। मैं हमेशा ही रिसेंटफुल रहती थी किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं कुछ भी अप्रिशिएट नहीं कर पाती थी। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, जब मेरी लाइफ में इतना बिग इवेंट हुआ,
उसके बाद भी आज भी मैं बहुत ज़्यादा अपने पापा को मिस करती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ इवेंट्स हुआ जिसमें मैं बहुत बहुत ज़्यादा ही बुरा फील करती हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसे टर्न अप करेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जब जब मैं लंदन जा रही थी तब मेरे पापा बहुत खुश थे। उसके बाद तो मेरी लाइफ में एक्चुअल बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हुई जिसमें अनफॉर्चुनेटली फ़िज़िकल फ़ॉर्म में माय डैड वाज़ नॉट देयर। जैसे मेरी शादी हुई, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, मैंने यहाँ पे भी मूव करा, मेरी नई फिर से मैंने नई जॉब जॉइन करी, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फैमिली, समवन हू वाज़ ऑलवेज़ माय चीयरलीडर इज़ नॉट देयर। मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे अपनी शादी के अराउंड में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है जिसकी शादी ऐसे हुई हो। मेरा कोई भी जानने वाला नहीं है जिनके साथ ऐसा हो रहा होता है कभी भी, जैसा मेरे साथ हो रहा होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अच्छी चीज़ें डिज़र्व नहीं करती क्या? मुझे क्या हमेशा मैं टुकड़ों में जीऊँगी? क्या मेरे को थोड़ी-सी खुशी मिलती है और उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें मुझसे ले ली जाती हैं? ये सारी फीलिंग्स मुझे हमेशा ही होती रही, क्यों नहीं होंगी? सबको होती है। क्यों नहीं होंगी? मतलब अगर मुझे नहीं होंगी तो शायद कुछ गलत है मेरे अंदर। मैं बहुत मैकेनिकली थिंक कर रही हूँ। इमोशनल लेवल पे मुझे सब फ़ील हो रहा था। इवेंचुअली मैंने जो रियलाइज़ किया और जो जिस चीज़ की मैंने गार्ड बाँध ली कि ठीक है, अभी बुरा लग रहा है बट पूजा तुम्हारी लाइफ़ यही है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। द सूनर यू डू, द easier it is for you to let go of the expectation of a life that you have। and आगे चल के भी, आज के टाइम में भी और कल भी कुछ चीज़ ऐसी हुई है जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी, कुछ चीज़ ऐसी हुई है जो तुम्हें डिफ़िकल्टी से हैंडल करनी पड़ी, ठीक है? और आगे भी ऐसा हो सकता है, पर दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। या तो तुम एंशियस हो सकते हो या तो फिर तुम उस चीज़ को लेट गो कर सकते हो, इस फीलिंग को लेट गो कर सकते हो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है। आई चोज टू डू द लैटर एंड आई हैव बीन एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। एंड विद ग्रेटफुलनेस कम्स a kind of happiness that is very subtle, that no one can takes away from you. It is almost to the point of being delusional, but what else you are gonna do in this life? You're not gonna sit and एक पोथी लेके नहीं बैठ सकते हो और आप टिक नहीं कर सकते हो मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। पता नहीं यार, ठीक है, हो रहा है जो आज हो रहा है उसमें तुम जी रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो खुश रहो, और अच्छा नहीं लग रहा है तो चेंज लाने की कोशिश करो। ऐसी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करो जो तुम्हें खुशी दे 80% ऑफ द टाइम। और अगर नहीं हो रहा है तो कॉल इट अ डे, कॉल इट अ बैड डे, रिलैक्स, टेक इट ईजी ऑन दैट डे एंड टुमारो विल बी अ न्यू डे। तो ये मेरा पर्सनल एनेक्डोट है, पर्सनल मेरी स्टोरी है। मैं हमेशा इन वीडियोस को अपनी स्टोरी से स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि तभी तो आप कोई रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर इफ़ आई डोंट इवन नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ मी सिटिंग हियर एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स? बट आई रियली डू नो, to the deepest of my hearts, to the deepest of my levels, what does it mean to live a life that is not really something that you expected, but then you have to accept it and then move on, and then from then on your life will start looking up, I promise you that। पहले ये समझो इस लेसन से कि क्यों इम्पोर्टेंट है एक्सेप्ट करना चीज़ों को जैसे वो है, कुछ चीज़ों को जैसे वो है अपनी लाइफ में। हम अक्सर ना अपनी लाइफ को एक ऐसे पैमाने से देखते हैं कि हमारे पास सारा कंट्रोल है अपनी लाइफ के लिए, जो कि ट्रू नहीं है। आप सिर्फ एक पर्सन हो इस अर्थ पे। क्या जो सूरज चमक रहा है वो आपके लिए चमक रहा है क्या? नहीं तो। क्या जो हवा चल रही है वो आपके लिए चल रही है? नहीं तो। क्या ये जो पत्ते झड़ रहे हैं वो आपसे पूछ के झड़ रहे हैं? नहीं तो। आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो इस यूनिवर्स में जितना आपको लग रहा है, आप एक स्टारडस्ट ही हो। मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ जब मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे लेती हूँ और मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ को मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही हूँ। इतनी सीरियस नहीं है, यू आर जस्ट अ स्टारडस्ट इन द स्पेक ऑफ दिस यूनिवर्स। बट इवन सेइंग दैट, आप अपने सेंटर ऑफ यूनिवर्स तो होने ही चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मैं एकदम अच्छी लाइफ अपना जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो जब आप वो कर रहे हैं तो उसमें एक कैवियाट ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी लाइफ फिर भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो मेरे कंट्रोल में है उस ही चीज़ को मैं इंजॉय या फिर मैनूवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जब आप वो करेंगे, ये कंट्रोल आप जब दे देंगे किसी हायर पावर को, कुछ लोग देते हैं या फिर पीपल ट्राई टू पिन इट टू समथिंग दैट इज जस्ट हैपनिंग, लेट योर लाइफ फ्लो, तो आपकी एंजाइटी कम रहेगी। इतनी एंजाइटी और स्ट्रेस के साथ ज़िंदगी जीने का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, मेरे से पूछ लो।
और क्यों इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्ट करना? क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो, जैसे मैंने बोला, तुम्हारे कंट्रोल और कंट्रोल के बाहर होगी। कैसे तुम रिएक्ट करते हो एट द एंड ऑफ इट इज समथिंग दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू बी इन योर कंट्रोल. And there is a concept of radical acceptance in psychology, which means that you have to very extremely actively just accept the things that are happening to you without thinking that this is only happening to you. Because ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं और ये काफ़ी रैंडमली भी हो रही हैं. मेरा मेंटल मॉडल बहुत थोड़ा अजीब लगेगा किसी को, बट मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि लाइफ के इवेंट्स, दिस इज़ द ओनली सेंस दैट आई कुड हैव मेड ऑफ द लाइफ दैट आई वाज लिविंग, कि रैंडमली लोगों की लाइफ में इवेंट्स होते हैं और सबकी लाइफ में हो रहे हैं. दिस इज़ हाउ लाइफ इज़. एंड if you know maths a little bit, the random number generator is always gonna uniquely generate a data point which is gonna be spread across the spectrum. It's not to say that एक नंबर रेंज में ही नंबर्स जनरेट होंगे. इट इज़ गोना बी यूनिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस इज व्हाट द थ्योरी सेज. एंड इफ indeed our life is a mix of random events, then एक जगह अगर bunch of bad things हो रही हैं तो eventually एक जगह bunch of good things भी होगी, क्योंकि that is how life will average out. And with that little theory of mine, I always believe कि आज अच्छा दिन है, कल बुरा दिन भी हो सकता है, फिर से अच्छा होगा, फिर से बुरा भी हो सकता है, फिर एक अच्छा होगा. This is all very random, but in the larger scheme of things, it's gonna be all right. And when I just go after that theory, I feel that it becomes important and really easy to accept things as they are, which is a short way of not getting into a mindset of unlimited suffering that we all constantly feel. Living your life, being a human, being any kind of a living being will come with its own set of suffering. अगर तुम नेचर को भी देख लो तो there is a cycle of birth, there is a cycle of death, there is a lot of different things that happens in between. हम humans ने शायद इतना romanticize कर लिया है अपनी life को, which is not bad in its essence, कि हमको लगता है कि एक perfect और happy life ही benchmark है. ऐसा true नहीं है. और the more you accept it, the more you get to the truth of your being, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे कि लाइफ इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग सफरिंग एंड द हैप्पी मोमेंट्स. तो इस कॉन्सेप्ट में एक्सेप्टिंग थिंग्स फॉर हाउ दे आर इज़ जस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू एक्सेप्टिंग योर लाइफ एज इट इज़ एंड यू एक्सेप्टिंग दैट दिस इज़ द nature of things, that what once was relevant will not be relevant. Time will take its toll, and this is what being a human, or this is what living means. There is a concept of wabi-sabi in Japanese philosophy which says that you have to find beauty in the imperfections and the sufferings of the life as well. And I couldn't relate more to this aspect when I'm talking about accepting life for what it is. If you think deeper about it, आप किसी चीज़ को जो टूटी हुई है उसको, या तो जैसे आप पर्सन है उसको छोड़ना पसंद कर सकते हैं, या फिर आप उसमें भी कुछ प्यारी सी चीज़ ढूंढ सकते हैं. सेम गोज फॉर योर लाइफ, सेम गोज फॉर योर डेज. आई ऑलवेज से कि द गुड एंड द बैड कैन एग्जिस्ट टुगेदर. एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई बुरे लोग साथ में रह सकते हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपका अगर एक अच्छा दिन भी चल रहा है, उसके बीच में भी कुछ हार्ड कॉन्वर्जेशंस, बुरे दिन भी हो सकते हैं. एंड जस्ट happy go lucky and positive life is not something that is also going to lead you to growth. when you look at yourself and you feel कि जब आप अपनी ही ग्रोथ को मेजर करेंगे जैसे मैंने किया है, तो मेरी लाइफ में भी इतने सारी बाउंड्रीज बनाने के पॉइंट्स आए, इतनी सारी हार्ड कॉन्वर्जेशंस जो मैंने किए, इतने सारे रिलेशनशिप्स और मेंटल मॉडल्स मैंने ब्रेक किए और लेट गो करने पड़े मेरे को. और वो बहुत एक्सट्रीमली हार्ड था, वो बहुत कोई ईजी नहीं था पाथ. बट जितना ज़्यादा मैंने किया उतना ज़्यादा मैंने अब खुद को चूज़ किया, और उस समय में मुझे बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट करना पड़ा कि दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ. एंड इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसको एक बॉटम लाइन बनाकर ही अपनी ज़िंदगी चले कि अब मुझे ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. और जब आप उसको एक फाउंडेशन बना लेंगे, जब आप उसको, उस मामले को
बंद कर देंगे कि अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा ही होने वाला है, तो आप एक फ्रीइंग एनर्जी के साथ डिसीजन ले सकते हैं, और जो भी है वो डिसीजन उस एक्सेप्टेंस के बेसिस पे आप ले पाएंगे। और वही तो ज़िंदगी है कि आप समझ पाएँ कि अब ये ऐसा ही है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी चीज़ कैसे कर सकते हैं, या इसी चीज़ को बेटर कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ के साथ जी कैसे सकते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंसने की बजाय आप एक्सेप्ट कर ले कि ये ऐसा ही है, ज़िंदगी ऐसी ही है, यही मेरा फैक्ट ऑफ लाइफ है, अब क्या, व्हाट इज़ नेक्स्ट। सो व्हाट्स नेक्स्ट, हाउ यू विल डू इट। Number one, you have to think of your life as a sum of things, sum of days, not just one day that is bad. अच्छा दिन होगा, बुरा दिन होगा, फिर बुरा दिन होगा, फिर अच्छा दिन होगा, पर आज में मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। आज के जो दिन है, दैट इज़ द यूनिट दैट इज़ गोना लीड मी टू माई बिगर प्लान, लेट्स से 1 year down the line, 2 year down the line, 5 year down the line, and when that has happened, even then I should feel happy in today. So ये थोड़ा oxymoronic है. Short term steps lead to long term goals. So you keep doing the things that are leading you to your long term goals, but also appreciate being in the present and appreciate कि आप आज है, और आपके पास सिर्फ आज ही है, आपके पास पास नहीं है, आपके पास फ्यूचर नहीं है। तो आप जब वो एक्सेप्ट करेंगे कि आज ही है, आप जब ये एक बेंचमार्क लेके चलेंगे कि आज का दिन मुझे इनरिच करना है और आज के दिन में मुझे कुछ ऐसा स्पेस निकालना है, टाइम निकालना है जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स में हेल्प करे, तो आपको वो एक्सेप्टेंस ईजियर होगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ को एक लॉन्ग टर्म विजन से देख रहे हैं, सिर्फ एक दिन या एक पर्टिकुलर इवेंट से नहीं। तो इसमें इसी का फॉलोअप आता है कि रियली डाइव डीप इनटू आपके क्या गोल्स हैं, आप अपना दिन कैसे देखना चाहते हैं, और आप उस दिन में क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे जो आपको पसंद है। जैसे पर्सनली फॉर मी, आई रियली मेड अप लाइक अ few things. I wrote it down what I want to do like a few years back, and my life is gonna look like, how my days are going to look like, and how are my days gonna look like is I will have space to do my work, office work. I will have a space to connect with my family. I will have a space to connect with things that I like doing, like cooking, and then reading, and then I will take care of my physical health as well. And this is very hard to do on a given day. बट अगर मैं कुछ दिन कर पा रही हूँ, कुछ दिन नहीं कर पा रही, इवेंचुअली अगर मैं बहुत टाइम तक नहीं कर पाती तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बट अगर मैं लम सम थोड़ा बहुत, इफ आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, इफ आई एम टेकिंग रेस्ट, दिस इज द पाथ फॉरवर्ड, दिस इज द थिंग दैट इज गोना इनरिच माई लाइफ। और इसी का फॉलोअप ये है कि यू ट्राई टू लिव योर लाइफ बाय द मेजर ऑफ द डेज दैट यू आर लिविंग, और उनको अच्छा बनाने की कोशिश करो। अगेन इसी का फॉलोअप पॉइंट नंबर 3, you have to be really mindful of your life, you have to bring a lot of consciousness in your life. बहुत बार जब मैं एक्चुअली बहुत बुरा फील करती हूँ तो मैं बहुत डूम स्क्रोलिंग करती हूँ, मैंने ऐसा नोटिस किया अपने में, और मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जाके खुद को कंपेयर करने लग जाती हूँ, और फिर मैं बैठ कर अपनी ही लाइफ बेकार करती रहती हूँ, क्योंकि मैं पूरे समय सोती रहती हूँ मेरे से वो नहीं हो पा रहा, लुक एट दैट पर्सन, शी इज़ सो सक्सेसफुल, लुक एट दैट पर्सन, ही इज़ सो सक्सेसफुल, व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ। बट ये अब मेरे साथ बहुत बिट्स एंड पीसेस में होता है। ओवरऑल मैं अपनी लाइफ को बहुत ग्रेटफुल और बहुत ऐसी चीज़ों में सोचती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ जहाँ पे हूँ। एंड बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ मेरी जैसी नहीं भी रही है, वो लोगों को मैं देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि दे आर रियली अनहैप्पी विद वेयर दे आर, वाइल for a person like me, I would give it all. I don't want to give it all, but I would give a lot of things to be in their position because they seem to be really successful, but I am not there. So this is the dichotomy of life. Grass always seems greener on the other side, but for me, I understood that अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे भी मेरी ग्रास एकदम हरी है, और अगर ब्राउन भी है तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरे लिए तो ब्राउन है कुछ कुछ जगह, इट्स फाइन, ठीक है। तो वो माइंडफुलनेस लाना बाय जर्नलिंग, मे बी बाय नॉट बीइंग ऑन योर फोन ऑल द टाइम। इफ यू आर कुकिंग, इफ आई कुक नाउ, आई जस्ट लिसन टू एन ऑडियो बुक समटाइम्स, बट इवन देन कभी कभी मैं वो भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ वो प्रोसेस। Other ways to include mindfulness is going out for a run, going for a walk, and observing the things. When you observe the things outside, you feel little but also large and really lucky to have just been born.
by the miracle of life. और अगर आप बाहर जा रहे हैं then you can appreciate whatever good weather there is today. कितना अच्छा लग रहा है बाहर, अभी जैसे स्प्रिंग हो रहा है यहाँ पे, तो मैं बाहर जा रही हूँ और बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ. आई रियली लाइक हाउ सीजन्स टर्न एंड आई एम काइंड ऑफ एन ऑब्जर्वेंट पर्सन इन दैट सेंस. मैं देखती हूँ कि नए नए फूल आ रहे हैं, पत्ते बहुत हरे हैं, पानी कितना अच्छा लग रहा है. ये सब चीज़ें जब आप लाते हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा सा माइंडफुलनेस लाते हैं, सिर्फ कियोस और सिर्फ नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थिंग्स ऑफ द सोसाइटी जो हमारे को हैंड ओवर कर दिए गए हैं, उस पर फॉल बैक नहीं करते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोना फाइंड योर लाइफ रियली ब्यूटीफुल एंड यू आर गोना एक्सेप्ट दैट यू आर जस्ट अ स्मॉल person here, right, who is trying to enjoy their life. Another thing that helps people is falling back to spirituality, या फिर आपका कोई faith है, आप उससे connect करने की कोशिश करें. I am trying to reconnect with my faith little bit, trying to be little bit spiritual in my thinking, क्योंकि कभी-कभी just giving the rein to a higher power, just thinking that there are some energies that are working for you, give you that sense of comfort and security कि आपको सब कुछ नहीं देखना है, कुछ ना कुछ आपके लिए हो जाएगा. जैसे बहुत सारे रिलीजन में, बहुत सारे ह्यूमन कल्चर्स में फेथ और द पावर ऑफ अ हायर पावर, जस्ट द पावर ऑफ थिंग्स जस्ट going for you, or someone just looking over you is very prominent, and there is a reason for it, because otherwise we'll feel very unsafe. It could be anything, it could be a person for you, it could be just a doctrine for you, as long as you are not actively just being a toxic person and actively defaming other religions. You can practice your spirituality, you can practice your comforting sermons. You can also just read a lot of books on this and understand the life better and find comfort in those words, is what I'm trying to say. So whatever works for you. So that is also one thing जो आपको help करेगा to accept कि ज़िंदगी एक तरीके से चल रही है, शायद मेरा इतना कंट्रोल नहीं है, शायद there is something that is in motion, और जो चल रहा है मैं सिर्फ एनर्जीज डिफाइन कर सकता हूँ. मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लाने की कोशिश करूँ अपनी ज़िंदगी में, अगर मेरे कंट्रोल में है तो. और मैंने देखा है कि अगर मैं वो करती हूँ तो एक्चुअली थोड़ी सी एनर्जी मैं अट्रैक्ट करती हूँ. ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है. मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची भी नहीं थी कि मेरे लिए होंगे, बट मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली उसको जब करना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि शायद एनर्जी शिफ्ट होती है, और मैं इसमें बिलीव करती हूँ. तो जब वो होता है तो मेरे को ज़्यादा एक्सेप्टेंस होती है कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, मैं एटलीस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जीज आए. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू टू लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स इज ट्राई टू रीफ्रेम योर माइंड सेट. पर्सपेक्टिव चेंज करने से भी बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती है जो हमें पहले समझ नहीं आ रही होती. ट्राई टू थिंक ऑफ एक्सेप्टेंस एज नॉट क्विटिंग. Try to think of it as something that you're doing for yourself to make yourself stronger and more stoic in your approach towards life, where आप सोचते हो कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं बस यहाँ पे हूँ और ये हो रहा है, ये इवेंट्स हो रहे हैं और मैं यहाँ पे हूँ. वो एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ को थोड़ा सा लेस एंशियस बनाएगी. जितना भी आप ये सोच पाएंगे कि ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये सोच पाना कि अभी इस मोमेंट में मैं क्या एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप अपने आप को, यू विल गो प्लेसेस. टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोना रिमाइंड यू इज detaching yourself from the situation. Depersonalizing yourself from the situation is the only step that is going to lead you to acceptance. How? When you think of your life as कि ये मेरे साथ हो रहा है, आप अपने आप को सेंटर में पुट करते हैं, जो कि आपको करना चाहिए अच्छी चीज़ों में. बट अगर जब ख़राब चीज़ हो रही है, सफरिंग हो रही है, आपका दिमाग बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रहा है, आप खुद भी अच्छे फील नहीं कर रहे, तो उस सेंटर में आप अपने आप को पुट करते हैं और ओवर एंड ओवर अगेन आप ये नैरेटिव अपने दिमाग में चलाना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, ये दिस इज हैपनिंग टू मी, व्हाई डज दिस हैपन टू मी. वाइल जस्ट लेट गो ऑफ दैट सेल्फ. यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो ये चीज़ हो रही है. फिर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से अगर आप देख पा रहे हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हो रहा है. सो डीपर्सनलाइजिंग योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन एंड द आउटकम, कि अगर ये मेरे साथ हुआ तो क्या होगा. कुछ भी हो सकता है, इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, बट it is still something that is coming to you in passing while the wheels of this world is in motion. Try to think of it like that. And the final thing that I'm going to suggest you is it is not going to be easy. एक दिन में नहीं हो जाएगा कि आप बैठ के बहुत
ज़्यादा इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं एक दिन में कि आप अपनी वनरेबिलिटी को अपनी स्ट्रेंथ में टर्न अप कर देंगे, जहाँ पे आप धीरे धीरे सारी चीज़ें अपनी लाइफ की एक्सेप्ट करने लगेंगे। नहीं, इसमें बहुत टाइम लगेगा, बट टेक स्मॉल स्टेप्स। और एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दें और आप ये सोचें कि अब मैं अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। नहीं, आप ये सोचें कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, और जो एक्चुअली में मैं कर सकती हूँ उसमें मैं बेस्ट दूँ। तो धीरे 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 स्टार्ट करो। जैसे मैंने बोला, आप बैठ के असली में लिखें आप क्या करना चाहते हैं। जर्नल भी आप कर सकते हैं। अपनी जो फीलिंग्स जो आप अपने अंदर घर करके बैठे रहते हैं, जब आप उनको पेपर में देखते हैं, वर्ड्स में देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होता है, ऐसा मैंने देखा है। और भी तरीके हो सकते हैं। आप किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आप थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, आप सिर्फ बाहर जाके थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं। जो भी आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको खुशी दे उस मोमेंट में, जब आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इफ़ यू चूज़ दैट एंड इफ़ यू चूज़ विद एन एक्सेप्टेंस कि नो मैटर व्हाट जो हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, मेरे मेरे अगेंस्ट दुनिया नहीं जा रही है। मतलब देर इज़ दिस थीम ऑफ feeling like the whole world is against you when you are going through depression and anxiety. I have known it too well, but ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं बता रही हूँ। अगर आप अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ हो रहा है, और अगर आप अपनी लाइफ किसी मोमेंट में सफरिंग से गुजर रहे हैं तो वो भी आपके साथ हो रहा है। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड सबके साथ हो रहा है। तो ये एक्सेप्ट करके छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जॉय देती है उनको फिर भी चूज़ करो, और ज़िंदगी चलती रहेगी नो मैटर वॉट। With that said, with that out of the way, I am at the end of this video. अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस वीडियो से तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपने कुछ टीचिंग ली या इससे, या आपको इससे थोड़ा सा अच्छा लगा या कंफर्टिंग लगा, तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं हमेशा कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग इसमें साथ में हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग इन छोटी मोटी चीज़ों से, बड़ी चीज़ों से जिनसे लोग गुजर रहे हैं, उनसे आगे बढ़ें, उभरें और अपनी लाइफ उस तरीके से जिएं जो उनको फुलफिलिंग लगे और जो उनको अच्छी लगे। ठीक है, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। दिस इज़ माई ओनली गोल टू मेक दिस वीडियोज़। एंड if you like it, please like it, share it with your friends and families, and subscribe to the channel if you want to. I am just gonna take a leave for today. I'm just gonna enjoy. I am just seeing that outside window too much, and I just want to go for a walk now and enjoy the sunlight that is peeking through. और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन में। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल दो, एंड आई होप आप इन लेसन्स को अप्लाई कर पाए अपनी खुद की लाइफ में और देख पाए लाइफ कितनी अच्छी है, खूबसूरत है एट द एंड ऑफ इट, एट द अदर साइड ऑफ इट ऑल। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।